Hello students, this is Amarnath in front of you, a physics teacher. I am teaching physics since 2014 in some reputed institute in Patna. If you want to crack exam like JEE or NEET, or you want to score a good marks in your board exam like CBSE, ICSE or state board, it does not matter. It is necessary for you to understand the physics, and for understanding physics it is necessary for you to understand some basic terms, basic concept about the physics. फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट होना सबसे ज़रूरी होता है. अगर आप फिजिक्स में स्कोर करना चाहते हो तो आपको फिजिक्स के जो टर्म्स हैं, फिजिक्स का जो मेथड है उसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी. अगर उस मेथड को आप समझ जाइएगा, उन टर्म्स को आप समझ जाते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप फिजिक्स के थ्योरी को समझ सकें, फिजिक्स के थ्योरी को कैलकुलेट करके प्रूव कर सकें. इसके अलावा आप न्यूमेरिकल को भी बनाने में सक्षम हो पाएंगे. अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को नहीं बना पाते हो, फिजिक्स के थ्योरी को कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, तो फिजिक्स आपके लिए काफ़ी टफ होगा. साथ ही साथ चूँकि आपको टाइम बाउंड के अंदर मैक्सिमम स्कोर करना है, तो आपको उन टाइम बाउंड के अंदर, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. और इसके लिए आपको कुछ शॉर्टकट मेथड चाहिए, जिस मेथड के हेल्प से आप आसानी से न्यूमेरिकल के आंसर तक पहुंच सकते हैं, ताकि कम से कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दे सकें. क्योंकि जितना ज़्यादा आप आंसर दे पाते हो उतना ज़्यादा आपका चांस बनता है नंबर स्कोर करने का या एग्ज़ाम को क्रैक करने का. तो आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहली बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस की, 100 आवर के सिलेबस की. जिस 100 आवर के सिलेबस में आपका कंटेंट्स क्या क्या होगा और कितना आप 100 घंटे में कवर कर पाते हो. तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं 100 आवर के सिलेबस की. चलिए, फिजिक्स के जो सिलेबस है उसमें से फर्स्ट चैप्टर जो होता है वह होता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट. फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में आप पढ़िएगा सिस्टम ऑफ यूनिट, मेजरमेंट, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर ऑफ मेजरमेंट. उसके बाद आएगा सेकेंड यूनिट जिसमें होगा काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स में आप पढ़िएगा यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन इन ए प्लेन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसके बाद आप पढ़िएगा थर्ड चैप्टर में लॉ ऑफ मोशन. लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड टाइप, इनर्शिया, मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम. इसके अलावा पढ़िएगा नेक्स्ट चैप्टर में वर्क एनर्जी पावर. उसमें आप पढ़िएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कॉलिजन, इलास्टिसिटी, एंड आफ्टर दैट motion of system of particles and rigid body. In this chapter you learn about center of mass, two body system, center of mass of some geometrical shape like disc, plate, ring, rod, etc. After that moment of force, torque, angular momentum, conservation law of angular momentum, equilibrium of rigid body, moment of inertia of some geometrical shape like again sphere, disc, etc. Parallel and perpendicular axis theorem. After that the gravitation. In gravitation you learn about the Kepler's law of planetary motion, universal law of gravitation, inverse square law, value of small g and its variation with altitude and depth, gravitational potential energy, gravitational potential of subgeometrical shape, geometrical field, escape velocity, orbital velocity of satellite, and after that properties of bulk matter like elasticity, stress, strain, Hooke's law, Young's modulus, bulk modulus, shear modulus, viscosity, Stokes law, terminal velocity, Reynolds number, streamline and turbulent flow, etc. And after that you learn about the heat and temperature, thermal expansion, specific heat capacity at constant pressure and at constant volume,
calorimetry, latent heat, heat transfer, black body, Newton's law of cooling. After that, thermodynamics. In thermodynamics, you learn about the thermal equilibrium, zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics. After that, isothermal and adiabatic process, reversible and irreversible process, heat engine, behavior. Next chapter is behavior of perfect gas and kinetic theory. In this chapter, you learn about the equation of state of perfect gas, work done on compressing gas, kinetic theory of gas, concept of mean value path, and the last unit is oscillation and wave. In this unit, you learn about the periodic motion, periodic function, SHM, that is simple harmonic motion, energy of oscillatory spring, simple pendulum, resonance and damped oscillation, wave motion and type of waves, that is longitudinal wave and transverse wave, progressive and stationary waves, principle of superposition, fundamental mode and harmonics, beat and Doppler effect. These are the topics which can be covered in 100 hours. And now I am going to explain the first equation of motion, that is V equals to U plus AT. इस इक्वेशन के बारे में हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे, लेकिन क्लास 9th में हमने इसे वाया ज्योमेट्री प्रूव किया था, लेकिन अब हम इसे वाया कैलकुलस प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर v जो है यह v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है एक्सेलरेशन है और t टाइम है। यह इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमेशा याद रखिएगा, यह तभी एप्लीकेबल होता है जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रहा हो। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं हो रहा होगा तब यह इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले हम फार्मूला पर डिफिनीशन पर आते हैं कि A इक्वल्स टू होता है dv बाय dt, यानी कि डिस्प्ले चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है उसी की रेट को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, तो dv बराबर हो गया a dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ लिमिट, तो ये हो जाएगा dv, यह लिमिट हो जाएगा वेलोसिटी का u टू v। और यहाँ पर चूंकि हम लोग डिफरेंशिएशन जो है वह या इंटीग्रेशन जो है वह हम लोग t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट इज dt। तो यहाँ पर a जो है कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, चूँकि यहाँ वेरिएबल को हम लोग t ले रहे हैं, यानी t वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो a को हम लोग बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, dt को लिमिट लेते हैं t1 से t2 तक, दैट इज नाउ dv का इंटीग्रेशन होगा v u से v तक लिमिट a dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा t1 से t2 तक। अब लिमिट को पुट कर देते हैं, v माइनस यू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इंटीग्रेशन को पढ़ लीजिएगा, वह आपको समझ में आ जाएगी, वह मैथमेटिक्स में कैलकुलस का पार्ट है। ओके, a t2 माइनस t1, अगर मान लीजिए t2 माइनस t1 इक्वल्स टू t हो, यानी कि 12 बजे से लेकर 12:30 तक, दैट इज टोटल टाइम 30 मिनट। तो t2 माइनस t1 इज द टाइम, सो इट इज टेकन एज t। देन v माइनस u इक्वल्स टू a t, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस a t।
दिस इज द डिजायर इक्वेशन। ओके, तो यह है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूविंग।